Hello students, welcome to my channel Maths ka Adda. Today I'll discuss some rules and properties regarding matrix. So the first is the transpose of the matrix which is used in the exercise 3.3 exercise. Okay, so the definition of the transpose of the matrix is what? A matrix which is formed by turning all the rows of the given matrix into the columns. Okay, and vice versa. That means रो को आप चेंज करोगे into the columns and columns को आप चेंज कर सकते हो into the row. That is called the transpose of the matrix. Okay, in other word you can say that the A is equals to Aij. This capital A is represent the matrix and this small aij is represent the elements of the matrix. This is small aij dash. Okay, transpose of the matrix A is denoted by A dash or A to the power T, or you can also use the symbol A to the power capital T. Okay, this is the symbols of the transpose of the matrix. So the next is properties of transpose of matrices. So कुछ properties के बारे में जान लेते हैं. Okay, so the A transpose का transpose is A matrix. Okay, that means अगर आप एक matrix लेते हो और उसका transpose का भी transpose करते हो, you again get the matrix A. Okay, and the second property is KA transpose is equals to KA transpose. That means here K is the constant or you can say that the K is any scalar. ठीक है. So third is A plus B transpose is A transpose plus B transpose. Okay, and the fourth property is A B whole transpose is B transpose A transpose. Okay, तो सबसे पहले देखो A B का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे. सबसे पहले B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर A ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और यू गेट B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. ओके, so the next topic is the symmetric matrix. So the definition of the symmetric matrix is a square matrix is said to be symmetric if A transpose is equals to A. Okay, अब symmetric matrix के लिए सबसे पहले condition क्या है कि matrix should be square matrix. अब square matrix क्या होती है? जहाँ पे number of rows और number of columns क्या होते हैं? Equal. That means matrix किस order की हो सकती है? 2x2 ऑर्डर की हो सकती है, 3x3 ऑर्डर की हो सकती है. ओके, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल, और वो मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज का मतलब क्या बताया था? रोज कन्वर्ट हो जाती है कॉलम्स में. इफ वी टेक एग्जांपल A मैट्रिक्स 3 -2 4 -2 6 2 4 2 3. ओके, अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ये जो रो 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम 1 में, ये रो 2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम 2 में, ये रो 3 कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम 3 में. आप ये मैट्रिक्स निकाल के देखना और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगी? इस ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगी. ठीक है, दैट मीन्स जब भी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाता है वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है? Symmetric matrix. Okay, so the next is skew symmetric matrix. Okay, so अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? Symmetric matrix, और ये क्या है? Skew symmetric matrix. So the definition of the skew symmetric matrix: a square matrix Aij is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equals to minus of A. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 5 3 -5 0 -8 3 -3 8 और 0. ओके, अब मुझे इसका क्या निकालना है? A ट्रांसपोज निकालना है. ट्रांसपोज में क्या करते हैं? ये रो 1 जो है कॉलम 1 बन जाएगी, रो 2 कॉलम 2 बन जाएगी, रो 3 क्या बन जाएगी? कॉलम 3 बन जाएगी. ओके, उसमें से आप क्या देखोगे कि जो ये वाली मैट्रिक्स आई है वो किसके इक्वल है? इसके इक्वल नहीं होगी. जब आप इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लोगे वो किसके इक्वल आ जाएगी? ए मैट्रिक्स के. ओके, सो द डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए. ओके, so next is the result. Okay, for any square matrix A with the real number entries, A plus A transpose is the symmetric matrix. Okay, इसका मतलब क्या है कि एक कोई मैट्रिक्स है
वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ कॉलम रोज क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो सकती है, या तो 2x2 ऑर्डर की हो सकती है या 3x3 ऑर्डर की हो सकती है, तभी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। उस मैट्रिक्स में क्या है, रियल एंट्रीज। इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर उसमें हो सकते हैं, उसकी जो एंट्रीज है वो कुछ भी हो सकती है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स एक कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में आप ए ट्रांसपोज ऐड ऑन करोगे तो यू गेट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली एक कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ए डैश, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यू गेट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी, जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, so the next result is any square matrix can be expressed as a sum of the symmetric and skew symmetric matrix. Okay, तो आप क्या लिख सकते हो, एक मैट्रिक्स को सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप क्या करोगे, लेट करोगे ए कोई मैट्रिक्स है, वो जो गिवन होगी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स 2x2 ऑर्डर की हो सकती है या 3x3 ऑर्डर की हो सकती है, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तभी इक्वल होंगे। ओके, तो उसका फॉर्मेट क्या है, ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि जो हम अभी हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर a प्लस ए डैश होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और a माइनस ए डैश होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो a मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। I hope you understand these properties. If you have any doubt regarding these, then comment me in the chat box. I hope you like my videos. So please share it with your friends. Press the like button and don't forget to subscribe to my channel.